Hello everyone. Today now I will just start with the topic listing of securities, its meanings, objectives and types. So first of all I will just start with the introduction of listing of securities. Here listing of securities means what? Actually it is to be stock exchange is to be listed with the securities in the market and whose companies or whose shares we can say that they which are listed in the stock exchange are actually called as an official trade list of securities. And if these companies are actually listed in the stock exchange, then its creditworthiness also increases. So here it is very much important for the listing of securities in the stock exchange. Now we will see what actually the meaning of listing of security is. Listing of security in a stock exchange is making an authorized listing. It is just like in making an authorized listing in the stock exchange, so that when the market or we can say that investors are trading over here in the market, their transactions become rightful and we can say it a legal, right? So here we can say that they are having a special right which actually the company get for the commercial trading in the stock exchange. So here only those shares and securities can be sold and purchased in the market which are registered with the stock exchange and are included in its trading list. Otherwise you cannot come in the market and do the sale and purchase of securities. If you want to just come in the market and do the trading, then it is very much important, or we can say that yes, it is a necessary to get a registered stock exchange and which should be called as a listing of securities. So here when we are doing a listing of securities, it is just done by the various rules and regulations which are actually governed by the SEBI, enacted by them. And also we just know that we have already seen in the earlier videos that brokers are also when they are just entering into the market, they should also be have a recognized authority to do the work. So then and then only they could take the transactions of sale and purchase of securities in the stock exchange. So here it is compulsory for the company issuing a shares of public offer. Now here we just various provisions are mentioned over here which are actually included in the section number 19 of the Securities Contract Act. The first one is over here that the securities can be smoothly sold and purchased as they are available in the market. Prices of the securities can move freely in the market and the restrictions can be placed on the trading by keeping a watch over it. And here interest of shareholders and investors can be protected. So these are the various provisions of the stock exchange. Now we will see what actually the main objectives are there for listing of securities. The first one is here main objective. Actually the main objective we can say that it is to provide liquidity and the marketability, right? So that effectively the transactions can be carried out by the investors. The first one is providing liquidity to the securities. Providing liquidity to this, if there is a proper liquidity being maintained in the market with the securities, then and only then the customers can get an encouragement to invest over here, come to do the trading in the market, right? So this is how the main objective for them is that to provide a liquidity to the securities so that they can just attract the customers and they can come and invest in their companies. So here the second one is mobilize savings for the economic development. Mobilizing savings means what? Here actually it is like it totally depends on the development of the economy, and as well as the first most main is like development of capital and the money market, right? And you all know that secondary market actually plays very important role in the financial system for the development, right? So here listing of market also plays an important role in the development of the means providing a securities or providing a liquidity at a very high level, right? So here
if the proper securities are there, then and only then the investors can get attracted, as we just saw in the first also. So here proper liquidity should be there, and here proper savings should be there, then and then only it can get a development, and then the recognized stock exchange can just do the transactions very smoothly by converting their investment into this and saving by converting the savings into their investments. Right. Now the third one is protect interest of investors by ensuring full disclosure. Here full disclosure means what? Actually they have to disclose all the information regarding the company near the investor, then and only then they can just do the investment over here. And also while doing listing in the stock exchange, near the stock exchange also all the rules regulations should be mentioned, then and then only it can be termed as, and we can say that listing agreement. जब हम listing agreement बनवाते हैं, stock exchange को list करने जाते हैं मार्केट में, listing of security जब हम करते हैं, तब उसके सामने हमको हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है. ठीक है. पीरियोडिकली वाइज बोल सकते हैं, पूरी पीरियोडिकली वाइज हमारी इंफॉर्मेशन हमको बाहर उनको प्रेजेंट करनी पड़ती है. दिस विल क्रिएट एक्चुअली वी कैन से दैट एफिशिएंसी इन द मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑल्सो विल बी देयर. So these are actually the main objectives of listing of securities. Now we will see types of listing. Types of listing में first कौन सा है? The initial listing. Initial listing means what? Initial यानी पहले, first time, right? सो यार जो हम इनिशियल लिस्टिंग जो फर्स्ट टाइम ही अनलिस्टेड कंपनी होती है और मार्केट में आके एग्रीमेंट के हिसाब से पूरा लिस्ट करती है लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, उसको हम बोलते हैं इनिशियल लिस्टिंग. लिस्टिंग फॉर द पब्लिक इशू. लिस्टिंग ऑफ द पब्लिक इशू मतलब कि ऑलरेडी लिस्टेड है कंपनी, लेकिन वो शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हमने नहीं किए हैं. वो करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बाहर निकाल सकते हैं ताकि जो इशूअर्स हैं वो आके पब्लिक इशू कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू. लिस्टिंग फॉर राइट इशू. लिस्टिंग ऑफ राइट इशू मीन्स यू ऑलरेडी इशूड है, लेकिन राइट इशू में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले चांस देते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग हमारे शेयर्स, हमारे सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग सिक्योरिटी लिस्टिंग फॉर राइट इशू. Now listing of bonus shares. Bonus shares are also there. That bonus shares are actually issued by the company when, जब कब होगा, जब भी हमारे कैपिटलाइजेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, हमारी कंपनी अच्छा खासा कमाएगी, तभी हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लिस्टिंग वी कैन से. Fifth one is listing for merger or amalgamation. Here it is new shares are actually issued or exchanged under the corporate restructuring. Here in case of amalgamation, new shares are actually issued by an amalgamated company to the shareholder of the amalgamating company. So here those shares are actually required जो उधर stock exchange के लिए concern होते हैं, ठीक है. So these are the types of listing. Now we will see what are the advantages of listing of security. Advantages में सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी की रेप्यूटेशन होती है, क्योंकि ये लिस्टेड है, मतलब सेबी के अंडर रूल्स रेगुलेशंस में सही से काम, मतलब लीगली होगा ये सब, उसने जो रजिस्टर्ड किया है, तो ठीक है. और ज़्यादातर लोग लिस्टेड कंपनी में ही सिक्योरिटीज़ अपनी इन्वेस्ट करना सही समझते हैं, ठीक है. वाई? बिकॉज इट इंक्रीजेज द क्रेडिट वर्दीनेस एंड द ट्रस्ट वर्दी, राइट. सो दिस इज हाउ इट इंक्रीज कंपनीज रेप्यूटेशन. द सेकेंड वन इज एक्सपांडिंग द मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज़. और सिक्योरिटीज़ की मार्केट भी क्या होती है, एक्सपैंड होती जाती है इन मैनी सिटीज़ और वी कैन से थ्रू आउट द कंट्री. सबको पता चला गोदरेज है तो वी ऑल नो दैट, राइट, क्योंकि वो लिस्टेड है. मैनी सच कंपनीज आर देयर. सो दिस इज हाउ कि एक्सपांशन मिलता है. डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप. डिसेंट्रलाइज ओनरशिप मीन्स व्हाट हियर, एक्चुअली डायरेक्टर्स जो होते हैं हमारी कंपनी, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनके अगर शेयर्स होते हैं लिस्टेड होते हैं अलग अलग मार्केट में, राइट, तो उनका परचेज ऑफ शेयर भी कैसा होता है, डिवाइडेड होता है डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से, ठीक है. तो यहाँ पे ओनरशिप ऑफ जो शेयर्स होती है ना वो भी सेंट्रलाइज्ड होती है, तो यहाँ पे इतना मैनेजमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है, वी कैन से, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप.
फोर्थ वन इज़ एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट। एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट मतलब कि अगर हमको हमारे लिस्टेड शेयर्स का ट्रांजैक्शंस और वो सब हर एक सिटी में सब जगह पे बढ़ाना है तो हमको एक्सचेंज और ये सब भी करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, राइट। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट द सिक्योरिटीज़ आर टू बी ट्रेडेड ऑन दी शेयर मार्केट। अगर शेयर मार्केट में होगा तभी उनको पता चलेगा। दिस इज ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज़ अ एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ, राइट। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, नॉट अ डायरेक्ट बट एन इनडायरेक्ट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कंपनी। फिफ्थ वन इज़ ईज इन रेजिंग कैपिटल। कैपिटल रेज करना ईजी हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि समझते हैं कि नहीं दिस इज़ एन ट्रस्ट वर्दी कंपनी, हमारी रेपुटेशन बढ़ जाती है कंपनी की, तो उसके लिए हमारा इनडायरेक्टली कैपिटल भी अच्छे खासा रेज हो जाता है। रिड्यूस इज अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन यहाँ पे कैसा रहता है, अंडर राइटर्स हम रखते हैं, इंटरमीडियरीज वी कैन से, तो उनका काम मतलब कैसा हो जाता है, वो हमारे बीच में नहीं मतलब कम हो जाते हैं। वाई, बिकॉज हम डायरेक्टली रजिस्टर्ड है हमारी, तो ट्रस्ट वर्दीनेस से बीच में ब्रोकर्स, एजेंट्स या अंडर राइटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ हाउ उनका कमीशन भी बीच में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी मच एडवांटेजेस वी कैन से फॉर द कंपनी व्हेन दे आर गेटिंग लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर्स, इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट वैल्यू होती है, प्राइजेस क्या है, उसका कोटेशन पूरा पेपर्स पे पब्लिश किया हुआ मिल जाता है। द 10th वन इज़ रिड्यूसिंग एन एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ कैपिटल। कैपिटल इशू करने के लिए भी जो वेरियस दूसरे एक्सपेंसेस हम करने पड़ते थे तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स ही अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। सो दिस इज़ हाउ क्रेडिट वर्दीनेस एंड दी ट्रस्टवर्दीनेस इंक्रीजेस। एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग टू द शेयर होल्डर्स, ये कंपनी के एडवांटेजेस थे। अभी हमारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स को किस तरीके से यूज़फुल है, शेयर होल्डर्स को इसलिए सबसे पहले उसकी तो सिक्योरिटी जो लिक्विडिटी होती है वो बढ़ जाती है, सिक्योरिटी मिलती है उसको ज़्यादा। देन एक्सचेंज ईजीली हो सकते हैं बिकॉज उनको अवेयरनेस होती है सारी, ठीक है। बोरोइंग्स भी इजीली हो जाता है, जब उनको चाहिए ज़रूरत होती है तभी दे कैन जस्ट डू इट। एडवांटेजेस ऑफ एन एक्सटेंसिव मार्केट, इन्वेस्टर्स कैन गेट एन एडवांटेज ऑफ दिस, राइट, बाय बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। प्रॉफिटेबल डिसीजन, वो लोग खुद अपना प्रॉफिटेबल है या नहीं है खुद डिसीजन ले सकते हैं, राइट, कि हमारे लिक्विडिटी बढ़ने वाली है कि क्या है, तो उसके हिसाब से वो लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, दे कैन वॉच देयर ओन बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स एज वेल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, दे कैन इवेल्युएट ऑन देयर ओन सेल्फ, राइट। सो ये एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्यूलेशन भी उसका एक अच्छा सा एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर स्पॉट परचेज करना है या फॉरवर्ड परचेज करना है तो इट डिपेंड्स ऑन देम। एडवांटेज ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम भी अगर इश्यूज़ होते हैं, प्राइस राइज होता है तो उनको इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा फंड मिलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल, दे कैन ऑल्सो गेट एन एडवांटेजेस ऑफ प्रीमियम। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, so these are the various we can say that key advantages of listing securities. Now we will just see that procedure of listing is there, right, but it is the thing like you can just go through it, various documents which are to be required for the listing of securities and SEBI ki guidelines and all are there. Now we will just directly see that trading of securities. Trading of securities actually has various steps. सबसे पहले हमको ट्रेड करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रोकर को रखते हैं, राइट। हियर इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी के साथ विदाउट रजिस्टर्ड अगर होते हैं तो ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो दे हैव टू सेलेक्ट द ब्रोकर, और ज़्यादातर सब ब्रोकर के साथ ही काम करते हैं। ब्रोकर यानी आपको पता है डीमेट अकाउंट खुलवाना है, ये करना है, कैसे परचेस करना है, तो फर्स्ट टाइम वाले जो होते हैं तो ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं तो हमारा थोड़ा काम ईजी हो जाता है, और ब्रोकर्स आपको पता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर होता है। देन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर यानी अगर हमको शेयर्स परचेज करना है तो हम ब्रोकर को चलो अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसके बाद उसको ही हम देंगे, लेकिन कैसा प्लेस करना है, बेस्ट ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब विथ नॉट स्पेसिफाइंग द प्राइस, कि जो टाइम के हिसाब से आपको सही लगे आप परचेस कर लेना, राइट। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन बेस्ट ऑर्डर। ओपन ऑर्डर में क्या रहता है, इट हैज़ टू बी आइदर परचेज्ड और सेल, कोई भी ओपन ऑर्डर में रहता है कि स्पेसिफाई कोई टाइम और प्राइस लिमिट नहीं दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओपन ऑर्डर।
लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर में क्या है, स्पेसिफिकली प्राइस की एक लिमिट दी जाती है कि इतने टाइम पीरियड में ये प्राइस है तो आप कर देना ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन लिमिट ऑर्डर। इमीजिएट ऑर्डर, इमीजिएट ऑर्डर कब होता है, इट इज़ एक्चुअली कि जो प्राइस स्टैंड करती है, प्रिवेल होती है उस टाइम पे, तो उसी टाइम पे अगर हमने कर लिया ऑर्डर, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन इमीजिएट ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या रहता है, ऑर्डर टू सेल एज सून एज प्राइस फॉल अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। अगर हमको पता होता है, चलो अभी सपोज जैसे 60 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन अभी पता है कि इसके प्राइस होने वाले हैं 55, तो जैसे ही पता है कि अभी 55 होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि 55 हों उससे पहले ही जो प्राइस होगा ना, कि भाई इससे अब डायरेक्टली 55 पे आ जाएगा, इससे बेटर है कि हम क्या करें, यहाँ बेचना है या लेना है, जो तुम्हारा डिसीजन है वो हम ले लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन स्टॉप लॉस ऑर्डर। डिस्क्रिशनरी ऑर्डर, डिस्क्रिशनरी ऑर्डर में क्या रहता है, हियर द डिस्क्रिशन इज गिवन एक्चुअली टू द ब्रोकर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट। सो उनको जो रीज़नेबल और उनको जो बराबर लगता है हम ब्रोकर पे डाल देते हैं कि आपको जैसे समझ में आए, लगे कि नहीं कि इतने प्राइस में परचेस करने जैसा है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई बात नहीं, मतलब हम अपने ब्रोकर को टोटली फ्रीडम देते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन डिस्क्रिशनरी ऑर्डर। लिमिटेड डिस्क्रिशनरी ऑर्डर यानी आप उसको ऑर्डर फ्रीडम देते हो, लेकिन कैसा, आप अपनी लिमिट्स बता देते हो कि मेरा लिमिट इतना है, राइट। सो दिस इज़ हाउ विद इन द लिमिट्स द ब्रोकर इज़ गिवन द फ्रीडम। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कैसा रहता है कि ऑर्डर का एक्चुअली आपको टाइम पता है कि सुबह को स्टार्ट होता है, दोपहर को बंद हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ एग्जीक्यूशन ऑर्डर के भी एक टाइम लिमिट्स होते हैं। अगर सपोज आपको शेयर कोई परचेस करना होता है, लेना होता है, ऐसा कुछ होता है, तो एक्चुअली वर्किंग आवर्स उनका क्या होता है, 11 बजे शुरू होता है, लेकिन 12 बजे इनकी मार्केट सेल परचेस की शुरू होती है और दोपहर को 2 बजे तक, देन अगेन बंद हो, फिर 3 बजे वापस मार्केट खुलती है। तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, 3 बजे के वहाँ उस टाइम पे सिर्फ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, यहाँ पे एक पूरी बुक प्रिपेयर की जाती है ड्यूरिंग द डे कि कौन से ट्रांजेक्शन्स एंटर हुए हैं। उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, कच्चा सौदा बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन आफ्टर दी ट्रांजेक्शन्स आर एक्चुअली एंटर्ड, सब हो जाता है, देन दी ब्रोकर्स आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ नोट ऑफ पक्का सौदा बुक, राइट। तो उसके हिसाब से नेसेसरी डिटेल्स उनको चाहिए ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, उसमें नेम ऑफ द पार्टी, अमाउंट, डेट, ब्रोकरेज कितना चार्ज हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, क्या टैक्सेस लगे, ये सारी इनको डिटेल प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एज आई टोल्ड यू दे जस्ट डू आफ्टर दे आर परचेजिंग इट, ठीक है। परचेज ऑनलाइन और ऐसे ही होता रहता है, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट का टाइम पीरियड रहता है। सेटलमेंट कैसा होता है कि उसमें भी स्पॉट डिलीवरी सेटलमेंट होता है कि उसी टाइम, देन हैंड डिलीवरी होता है। हैंड डिलीवरी में क्या रहता है, जनरली इट इज सेटल्ड ऑन द डे विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज एन अर्लीस्ट। आपने डे डिसाइड किया 14 डे ऑफ ट्रांजैक्शन, उससे पहले एक डे डिसाइड किया जाता है। सो दिस इज हाउ द डिलीवरी इज एक्चुअली, डिलीवरी ऑफ पेमेंट इज एक्चुअली मेड ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, राइट। So here then the other one is clearing the settlement. Clearing the settlement में क्या रहता है, it is like in clearing of settlement house we can say that, right, कि most of the transactions कैसे होते हैं, कोई एक मेथड के हिसाब से होते हैं, जैसी डिमांड होती है ना उसके हिसाब से फटाफट वो लोग क्लियर करते रहते हैं। स्पेशल डिलीवरी सेटलमेंट, स्पेशल डिलीवरी सेटलमेंट इज़ लाइक एन, उनका नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, मैंने आपको बताया आगे 14th डे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे परमिशन गवर्निंग बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से होता है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एन स्पेशल डिलीवरी सेटलमेंट। द 6th वन इज लॉजिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर एंड इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सो हियर आफ्टर द शेयर्स आर एक्चुअली ड्यूली स्टेम्ड एंड नेक्स्ट टू लॉज, ठीक है, तो उसके बाद एक रिसिप्ट ड्यूली एग्जीक्यूट होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है, एंड कंपनी वो पूरा वेरीफाई करती है, उसके बेसिस पे उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से अवेलेबल हैं कौन से नहीं हैं, उसके हिसाब से बाद में वो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। तो वहाँ पे ट्रांसफ़री भी एंटर होता है रजिस्टर्ड मेंबर के साथ, एंड दिस इज़ हाउ द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एक्चुअली डन for the demat form and the entries are made in the account of depositors. So this is all about lodging of shares, transfer and issue of share certificate. So these are the trading of securities के steps. Okay, thank you.